زبان پر لائیں نا آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہاں جو بات لکھی ہوئی ہے نا آپ صدر مناظر سے بات کریں آپ میرے ساتھ بات کریں نا جی ان کو گفتگو کرنے ہیں نا پھر یہ گفتگو کر لیں آپ بھی گفتگو کر لیں میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے ان کو تو آپ واضح طور پر اپنے مذہب کو واضح طور پر بیان کریں میرے ساتھ دیکھو بات کریں یہ بات جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو تھوڑا توجہ سے پڑھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ کا شرعی حکم بتانا ہوگا جو آپ مانگتے ہیں ان کا حکم آپ بتائیں گے ان کے ذمہ تو منکر ہے یہ تو منکر کے ذمہ تو دلیل منکر کے ذمہ ایک بات کی بات ہے دلیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو مناظرہ شروع ہوگا ہم بتائیں گے بھائی دیکھیں گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ شرطوں میں طے ہے کہ بریلوی عالم دین یہ ثابت کرے گا کہ دعا مانگی جائے دیوبندی کہے گا نہیں مانگی جائے تو آپ جو مانگتے ہیں آپ کہیں وہ کیا ہیں بتی ہیں گناہگار ہیں گناہ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں کوئی حکم تو آپ شرعی بتائیں گے نا آپ دعا کو کہتے ہیں خلاف سنت ہے آپ کہتے ہیں ان کی مرضی ہے بھائی آپ حکم تو بتائیں بھئی وہ مانگنے والا بتی ہے گناہگار ہے ثواب کر رہا ہے برا کر رہا ہے کوئی حکم شرعی تو واضح کرے نا بہتر ہے کہ خلاف سنت ہے خلاف سنت عمل بدعتی ہے کہ نہیں ایک بس بات ختم جو جنازے کے بعد دعا مانگنے سب چیز یعنی بدعتی ہے بدعتی ہے نا وہ نہیں ہم نہیں دیکھیں بھائی بزرگوں میں میری بات سنیں یہ دیکھیں نا جی دیکھیں نا ایک منٹ یہ شرطیں آپ کے پاس پہلے آئی تھیں شرطوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی آپ اس وقت یہ فرما دیتے کہ یہ شرط کاٹو جب شرطوں میں لکھا تھا کہ حکم شرعی بتانا ہے تو آپ بتائیں کہ دعا مانگنے والا کون ہے یعنی آپ اس چیز پر مطمئن نہیں ہو رہے کہ خلاف سنت نہیں ہم تو وہ فعل ہے خلاف سنت بات کی بات ہے یہ تو مناظرے کی بات ہے محل نزاع تو آپ متعین کریں شرطوں پر تو پورے اترے ہیں احکام شریعہ میں سے خلاف سنت احکام شریعہ میں سے خلاف سنت احکام شریعہ میں سنت عمل ہے تو جو عمل کر رہا ہے وہ خلاف میرے پیارے بھائی میری بات تو سنیں ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں خلاف سنت ہے آپ ذرا یہ مہربانی فرمائیں پہلے کسی کتاب سے پڑھ کے یہ بتائیں کہ احکام شرع کتنے ہیں کون ان میں خلاف سنت بھی حکم ہے وہ تو مناظر کا کام ہے نہیں مناظر کا نہیں ہے آپ کا کام ہے نا گفتگو آپ کر رہے ہیں میں جب اس کا کام پھر وہ بولیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خلاف سنت ہے دیکھیں آپ نہیں کہہ رہے آپ میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے شرائط پہ آپ نے اور مجھ نے آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے اس بات کا جواب دیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ناجائز ہے ایک منٹ آپ کہتے ہیں نا جب خلاف سنت ہے نا آپ مہربانی کریں کتابوں میں سے یہ ثابت تو کریں کہ خلاف سنت کون سا شرعی حکم ہے شرعی حکم کتنے ہیں کون کون سے اور یہ اس میں پاس کرنی ہے دعا بعد جنازہ پہ پاس کرنی ہے محل نزاع پہلے متعین ہوگا تو نماز جنازہ پر دعا ہوگی بات ہوگی نا آپ حکم بیان کر انہوں نے حکم بیان کر دیا خلاف سنت آپ پہلے ثابت کریں گے نہیں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں آپ پہلے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ خلاف سنت ہے کسی کتاب سے ہماری اتنی کتابیں پڑھی ہیں اصول شاشی نور الانوار حسامی توضیح تلوی مسلم الثبوت اتنی کتابیں اصول کی پڑھی ہیں کسی کتاب سے بتائیں تو صحیح کہ خلاف سنت بھی کوئی شرعی حکم ہے آپ حنفی ہیں الحمدللہ ثابت کریں نا کسی کتاب سے ماشاءاللہ پڑھیں وہ تو بعد کی بات نہیں جھگڑے والی بات جو انہوں نے حکم بیان کر دیا آپ کا بھائی مرد متعین ہوگی تو علاج شروع ہوگا نا خلاف سنت حکم بتاؤ حکم جو شرعی احکام ہے میری گال سنو یہ کر کرنی ہے انہیں گفتگو تے قیامت تک نہیں فیصلہ کی سکنا بہت تشریف رکھو اساں توقع دیکھنا ہے خلاف سنت ہے تساں کو کیا دے کیا ہے وہ میں اپنی باری پر بتا رہا ہوں نا میں بالکل بتاؤں گا میں اپنی باری پر بالکل بتاؤں میں حاضر ہوں ہاں وہ تو بتائیں گے نا مناظر اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے اور جو مانگنے والے خلاف سنت فعل پر حکم لگائے کیا کر رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے نبی تو وہ گناہ کر رہے ہیں بدعت کر رہے ہیں ناجائز کا اس کا جو ہے نا سارے مطلب سمجھ سکتے ٹھیک ہے آ گئے اس میں بس ٹھیک ہے وہ بدعتی بھی ہے سب کچھ جی چاہیے وہ حرام ہے اس میں آپ جو ہے نا جھگڑا نہ کریں ٹھیک ہے آپ اپنا حکم ٹھیک ہے سارے سن رہے ہیں کہ جو خلاف سنت ہے ناجائز کر رہے ہیں بدعتی ہیں ناجائز بے بدعتی بے حرام کر رہے ہیں حرام آپ کہیں ناجائز نہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کی دعویٰ ہے آپ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے خلاف سنت کو حرام آپ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کہتا ناجائز ہے نہیں ہے ناجائز آپ کہتے ہیں نہیں جب ناجائز نہیں ہے تو ہم آئے کیوں ہیں ناجائز ہے یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے بس صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ناجائز ہے ٹھیک ہے ناجائز ہے ناجائز ہے اور خلاف سنت ناجائز ہے ٹھیک ہے حضرت اصل جو افضل جو آپ کو میں نے روایات بتائی ہے نا بالکل میں نے سنی ہے اب میری بات سنو 11 حدیثیں ایسی سنانی ہیں جو مروجہ وہ تو بات کی بات ہے مروجہ دعا کو ثابت کرے اس کے علاوہ ہم بات نہیں سنیں گے آپ کو جی پہلے تشریف رکھیں پڑھیں گے واضح اس کا ترجمہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا
4 तकबीरों के बाद सलाम फेरा, फिर बैठ गए, सहाबा बैठ गए, दरूद शरीफ पढ़ा, कुल शरीफ पढ़े और फिर सहाबा ने मिल्क किया और फिर हुजूर ने दुआ मांगी, फिर जनाजे को उठा कब्र में दफन किया। एक हदीस दिखा दे, एक हदीस, सारे उलमा ठीक बैठे हैं, ठीक इतना किताबें आपने लाई हुई हैं, ठीक है। एक हदीस, सिर्फ ठीक, एक ठीक। हदीस। आपने तो 11 की बात की है, एक हदीस दिखा दे, अल्लाह की कसम हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह। हौसला, बैयत हौसला। करेंगे और हम किताबें उठाकर और खैब व खासिर होकर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वरना माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत तशरीफ। बात को छोड़े, आप बात बताएं बस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन व अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मद्दे मुकाबिल मुनाज़िर जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी गुफ्तगू तुमने सुनी कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना खिलाफ सुन्नत है और नाजायज़ है, और ये बातें सारे खिलाफ सुन्नत में आ जाती हैं। अपना दावा पेश करने से पहले एक गुजारिश ज़रूरी समझूंगा, शर्तों में भी लिखा है, जिस तरह शर्तें तुमने सुनी कि ये मुनाजरा देवबंदियों और अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी अल मारूफ बरीलियों के दरमियान है, और ये शर्तें मुत्तफ़क़ अलैह हैं, इन पर दोनों जानबों से दस्तखत हो चुके हैं। अगर किसी फरीक को इन शर्तों में उस वक़्त एतराज़ था या कोई उनको शक शुबा था तो उसी वक्त ज़ाहिर करते और उस वक़्त हम उनका जवाब भी देते, उनकी सफाई भी पेश करते। इब्तिदान हम ये इनसे गिला भी करेंगे कि हम इधर मेहमान भी बन के आए हैं, इन्होंने शर्तों पर गिले शिकवे एतराज़ें शुरू किया, हालांकि इनका उसूली बिल्कुल हक नहीं था। जब एक दफ़ा इनकी तरफ से दस्तखत हो चुके हैं, एक बात तुमने तस्लीम कर ली, ये शराइत तुम्हें तस्लीम हैं, तो फिर उस पर गुफ्तगू करने का तुम्हें बिल्कुल हक नहीं था। ये तुम्हारी तरफ से पहली ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि इस मुनाजरे ये शराइत में कहीं भी हमने नहीं लिखा कि हम 11 हदीसें दिखाने के पाबंद हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह, इसमें कहीं भी नहीं लिखा। अगर इनको यही मतलूब था तो क्या वजह था, इनके हाथ खुश्क हो गए थे, इनका दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था, उस वक्त लिख लेते कि हमें जनाजे के बाद दुआ का जो जवाज है, जायज़ होना है, जो तुम मांगते हो और इसको जायज़ समझते साबित है, और हमें 11 हदीसें सुनानी, हम एक हदीस से साबित तो उसको नहीं मानते, 2 हदीसों से साबित तो फिर भी नहीं मानते, 3 हदीसों से साबित तो फिर भी हम अल्लाह के रसूल के हदीसों पर ईमान नहीं रखते, 4 से साबित तो हमारे नज़दीक जायज़ नहीं, 5 से साबित तो 6, 11 मुकम्मल करने तब जनाजे के बाद दुआ जायज़ होगी। हालांकि एक मसला एक हदीस से साबित तो भी जायज़ है, 11 की जरूरत नहीं, शर्त नहीं है कि 11 हदीसों से साबित होगा। उलमा बैठे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपकी यही शर्त थी तो आप बेशक लिख लेते, अगर हमें उस पर एतराज होता तो हम अपने एतराज तुम्हारे सामने रखते, अगर हम उस पर राजी होते तो हम दस्तखत कर लेते। आपने उस वक्त कोई शर्त नहीं रखा, लिहाजा उसूली तौर पर आप इस मुतालबे के बिल्कुल हकदार नहीं है। अब हमारी तरफ से दावा ये कि हमारी किताबों में मौजूद है, कोई नया दावा मैं अपनी तरफ से पेश नहीं करता हूं, ये फतावा रिजविया है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान कंदहारी सुम्मा बरेली रहमहुल्लाह ताला के फतावा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा 240 पर मौजूद है कि अमवात मुस्लिमीन के लिए दुआ महबूब और शरन मतलूब। कोई भी मुसलमान फौत हो जाए उसके लिए दुआ मांगना ये शरन अच्छा भी है और शरन मतलूब भी है, और नुसूस शरिया आयतन व हदीसन 12 दुआ इरसाल मुतलक व इतलाक मुरसल पर वारिद, जिनमें किसी ज़माना की तक़यीद व तहदीद नहीं है।
इस पर जो आयात और अहादीस है वो मुतलक के आम है, जिनसे साबित होता है कि दुआ मांगना जायज़ है। उसमें किसी वक्त की तखसीस नहीं कि फलां वक्त तो मुस्तहब व मशरू है और फलां वक्त नाजायज़ व ममनू है। शरीयत पाक में, कुरान में, हदीस में एक आयत मौलवी साहब नहीं दिखा सकते जिसमें यह आया हो कि बाकी वक्तों में दुआ मांग सकते हो लेकिन जनाजे के बाद ना मांगो। हम 11 हदीसों का मुतालबा नहीं करते, मौलवी साहब ने 11 हदीस से हमसे मुतालबा किया। हम कहते हैं एक हदीस दिखाओ जिसमें हजूर ने फरमाया कि जनाजे के बाद दुआ न मांगो। हम 11 की मुतालबा नहीं करते, हम इनकी बात मानकर इनके दस्तखत दे देंगे। हम 11 की तादाद भी नहीं लगाते। हमने न वहां शर्त लगाया है और ना इसकी और एक मिनट, ये दरमियान में बंदे बोलने लगे, तुम न बोलो आपस में, मुनाज़िर बोले ना। लिहाजा जब दुआ मुतलकन मुस्तहब जायज़ है तो जनाजे के बाद जो वक्त है ये भी उन्हीं औकात में दाखिल है और जायज़ है और हम उसके जवाज़ के कायल हैं और जो मांगते हो जायज़ अमल पर कर रहे हैं। न फ़र्ज़ है न वाजिब है, जो नहीं करते हम नहीं कहते कि वो उसने फ़र्ज़ काम छोड़ा, वाजिब छोड़ा। और हमारे जितनी भी किताबें हैं मौजूद हैं, कहीं भी हमारे एक मुस्तनद आलिम भी नहीं लिखा कि जनाजे के बाद दुआ या फ़र्ज़ है या वाजिब है। हम न फ़र्जियत के कायल हैं न वजूब के कायल हैं, जवाज़ के कायल हैं। हमारे फतवे मौजूद है, 100 साल पहले हमारे उलमा फतवे लिख चुके हैं। बज़लुल जवाइज़ ये रिसाले हैं और आला हज़रत के खुलफा हैं, शागिर्द हैं, मैदान पे मौजूद हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हम कहते हैं जनाजे के बाद दुआ जायज़ है। जो मांगते हैं वो एक सवाब और कार खैर कर रहे हैं। अब इस एक मिनट तसल्ली रखें, एक मिनट जी, खैर एक टाइम शुरू नहीं थी जी। अब मौलवी साहब ने जो दावा किया, पहली दफा तो इनकी शिकस्त अपने दावे में हो गई। मौलवी साहब ने दावे में कायदे लगाई कि जनाजे के बाद 3 दफा कुल शरीफ, इसका मतलब है 2 दफा कुल शरीफ पढ़ो फिर खिलाफ सुन्नत नहीं, 1 दफा पढ़ो खिलाफ सुन्नत नहीं, 3 दफा। क्योंकि ये कानून है, मुताद्दद पर इस बात आ जाए तो उसकी एक सूरत होती है और मुताद्दद पर नफी आ जाए तो उसकी मुताद्दद सूरतें होती हैं। मौलवी साहब ने 3 दफा कुल का कहा, इसका मतलब है 3 दफा ना पढ़ो, 2 दफा पढ़ो, 1 दफा पढ़ो, जायज है। ये हमारी फतह है कि 1 दफा का जवाज खुद उनके दावे से साबित हो गया। और हमने ये नहीं कहा था कि 3 दफा ही खामखा पढ़ोगे, हम ये कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। 1 दफा कुल शरीफ पढ़ो या ना पढ़ो, 2 शरीफ पढ़ो या 3 दफा दुआ, हमने कहा था जनाजे के बाद दुआ जायज। मौलवी साहब ने कहा 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद, इसका मतलब है 2 दफा दरूद पढ़े फिर जायज है। ये तुमने अपने दावे में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, वो खिलाफ सुन्नत नहीं। 1 दफा दरूद शरीफ पढ़े तो फिर वो खिलाफ सुन्नत नहीं, 3 दफा पढ़े सूरह इखलास और 3 दफा दरूद पढ़ें फिर वो खिलाफ सुन्नत है और नाजायज भी है। और इसमें बिदअत वाला ये भी उसने कहा सारे आ गए। इसका मतलब है इससे कम, लिहाजा मैं मौलवी साहब से मुतालबा करता हूं कि मुझे लिख के दे कि 3 दफा से कम पढ़े, 2 दफा जायज है, 1 दफा जायज है। दरूद शरीफ 3 दफा से कम हो जायज है, क्योंकि तुम्हारा दावा 3 दफा, आपने खुद सामने कहा, वीडियो हो रही, सब ने सुना कि 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद शरीफ और फिर मौलवी साहब को मिल किया जाता है और वो दुआ मांगते हैं। अगर 3 दफा दरूद शरीफ न पढ़ा जाए, मेरी बात का जवाब देना है, और 3 दफा कुल शरीफ भी ना पढ़ा जाए और मौलवी साहब सलाम फेरने के बाद दुआ मांगे, या अल्लाह इस मैयत की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह इसको बख्श दे और जनाजा उठाए जाए, ये दुआ तुम्हारे नजदीक जायज है और तुम्हारे दावे से भी साबित हो रहा है। अब जी बात करें। सारी जुबान है ज्यादा सवाल गंदम जवाब चीना असा इन्हें कने है कि भाई तुसा जरी मुरवजा दुआ मंग देवे तुसा 3 दफा पढ़ देवे, असा ना 1 दफा पढ़ दे ना 2 दफा पढ़ दे ना 3 दफा पढ़ दे, हाँ। असा दुआ मंग दे। ये थोड़ा दावा असा 1 दफा नहीं से मंग दे ना, 1 दफा असा कुल पढ़ते हैं ना 2 दफा पढ़ते हैं ना 4 दफा पढ़ते हैं ना 5 दफा असा पढ़ देगा नहीं। बोल से पता नहीं समय उर्दू में बात की सुनी गई, हम तो पढ़ते ही नहीं है भाई। 2 हो 3 हो 1 हो, हम कहते हैं तुम जो ये दुआ करा रहे हो लोगों को कहते हो कि ये सुन्नत है। अभी तुम कह रहे थे 1 हदीस दिखा दो, 11 न दिखाओ, 11 की शर्त भी नहीं है। तुमने कहा है कि हम 11 दिखाएंगे, हमने शर्त नहीं लगाई। बात को समझो हजरत साहब, हमने 11 की शर्त नहीं लगाई। तुम्हारे मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं 11 दिखाता हूँ, हमें 1 हदीस दिखा दो, सिर्फ 1 हदीस। इतना किताबें लाई हुई है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, हमें आज तक हदीस नहीं मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से, जिस तरीके से तुम दुआ लोगों से करवा रहे हो और जिसको सुन्नत कह रहे हो, हुजूर का एक फरमान दिखा दो
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो या करके दिखाया हो कि आपने सामने जनाजा हो, आपने जनाजा पढ़ाया हो, 4 तकबीरों के बाद आपने सलाम फेरा हो और उसके बाद फिर हुजूर बैठ गए हूँ, सहाबा बैठ गए हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने कुल और दरूद शरीफ पढ़ कर हुजूर की मिल्क किया हो, हुजूर ने फरमाया हो कबिल तो, और फिर हुजूर ने दुआ मंगवाई हो और फिर मंगवा कर जनाजे को उठाया हो, फिर कब्र में ले गए हूँ। आप एक हदीस वक्त को ज़ाया न करें, इन लोगों का वक्त भी ज़ाया न करें। हमारे उस्ताद मोहतरम फौत हो गए, अभी ये मैसेज आया है, हम मेहरबानी करें एक हदीस दिखाएं, लोगों को भी ना आप जो है ना इसमें डालें, ना हमें इसमें सख्ती में डालें। एक हदीस दिखा दो बस, बात को ख़त्म करो। कोई है तुम्हारे पास तो पढ़ो, नहीं है तो बाकी ले तो लाल कुछ नहीं कहते। कोई हमारी शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, एक शर्त है, एक हदीस 11 भी न दिखाएं। मुफ्ती साहब भेज कर आवे, कोई कह रहा बुजुर्गों नहीं तो ना भाई मैं कहता शर्त है ना, एक शर्त भी नहीं है, मैं कहता शर्त है ना, तुमने कहा तो एक शर्त भी कोई शर्त नहीं। एक मिनट मेरी बात सुने ना, मैं सदर मुनाज़िर दरमियान में बात सुने मेरी। हो गए हैं, अगर आपके पास हदीस है तो सुने, नहीं तो वक्त ज़ाया न करें। ठीक है, चलो कर। बुजुर्गों बात ये है, आप मैं बात कर रहा हूँ ना सदर मुनाज़िर, आप बात तो सुने तसल्ली से। हम कह रहे हैं कि हफ्ता पहले ये शराइत आपके पास हाजी साहब आई थी, आपने दस्तखत किया था, कोई शर्त लिखी है कि अगर आप हदीस नहीं दिखाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, लिखी है आपने कहा था कि आप अब चुप हो जाए, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने, इतनी शर्तें लिखी, बात तो आप बात तो सुने ना जी, बात तो सुने, हिवे नहीं, एक मिनट वो आ जाएगा, एक मिनट आप न बोले ना, सदर मुनाज़िर बोले, देखें सदर मुनाज़िर को आप सदर को मुनाज़िर बोले, बात तो सुने, एक मिनट आप चुप हो जाएं। सदर मुनाज़िर साहब, जब तकरीबन एक हफ्ता पहले ये शर्तें आपके पास आई थी, आप चुप हो जाएं, बुजुर्गों एक मिनट, ये दस्तखत आपके हैं, एक मिनट, अच्छा अब आप चुप हो जाए, मेरी बात सुने, शर्तें कहते हैं, आप कहते हैं शर्तें कुरान हदीस नहीं है, जब आपके पास आई आपने दस्तखत क्यों किए थे? क्या खिलाफ नहीं है? कुरान हदीस के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है यार। दस्तखत क्यों किए थे आपने? जो दस्तखत किए थे उस वक्त, आप कहते हैं कुरान हदीस है, उस वक्त आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट आप यार मेरी बात है, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके पास शर्तें आई थी, आपके मुनाज़िर साहब ने दस्तखत फरमाए थे, अब ये बातें करना कि आप हदीस दिखाएं, ये कोई बात नहीं, आप चुप तो हो जाएं। आपका सदर मुनाज़िर बात कर रहे हैं, जब मुनाज़िर बोले वो चुप हो तो मैं बोलूँ ना यार, मैं कैसे बोलूँ? वो चुप हो जाए, जब मैं बुजुर्गों चुप तो हो जाए, एक मिनट बुजुर्गों को जरा पानी पिलाए यार, कोई बंदा पानी पिलाए, एक मिनट अबला हवाला अच्छा पानी 254 हवाला ना मैंने कहा पानी, आप बुजुर्गों बैठे तो सही, सदर मुनाज़िर बात करें ना, अच्छा एक मिनट आप तशरीफ एक मिनट तशरीफ रखो। अच्छा मैं बात खत्म करता हूँ, बड़ा मुख्तसर एक मुख्तसर आपके मुनाज़िर सदर ने बात की, मेरी बात सुन ले एक बार, सब साथी खामोश हो जाए, सब साथी एक मिनट, सब साथी कोई पानी का, सब साथी 2-4 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, नहीं भाई छोड़, सब साथी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, कोई दोस्त पानी का पिलाओ, मुफ्ती फारूक साहब का पानी कोई पिलाओ जा, जो महल्ले जो इसका पस मंजर है ना हजरत, जो इसका पस मंजर है वो मौलाना ने बयान जी ठीक है, और मकसद भी इस मसले को हल करना है। आपकी क्या राय है? सब साथियों से पूछ रहा हूँ जी, मैं अपने सब साथियों से, ये मसला हल होना चाहिए। तो मसला हल होने के लिए बेहतर सूरत यही है कि जो काम जो बंदी मौलवी करते हैं वो साबित करे, जो बरेलवी करते हैं वो साबित करते हैं। आपको मंजूर है ये? अल्लाह अकबर, एक मिनट आप तशरीफ रखें, मेरी बात सुन, आप बात करें हम सुन रहे हैं, करें बात कर लें आप।
तो अब ये शुरू से जो अमल करते हैं, ठीक है, इधर कुरान की आयत, ये हम नियत कर रहे हैं कुरान में है, नहीं है जी, हदीस साबित कर दे, नहीं है जी, क्या अपना इजमा साबित कर, नहीं है जी, क्या साबित कर। उसके बाद तकबीरा कहते हैं, ये सब मसले का हल करना है ना। और ये महल्ले निज़ात जिस वक्त ये बात हुई थी, मौलाना ने कहा अब तसल्ली से सुने, उन्होंने कहा हम ये जो अमल करते हैं, मुफ्ती साहब ने, हम जो अमल करते हैं हम ये 11 हदीसों से साबित कर सकते हैं। मुझसे आपने कहा था यहाँ पर ऐसे बोहतान बांधा गया है, आपने कहा था, सुन लिया जी, आप बात करते जाए, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करते जाए। यकीन ध्यान नहीं होगा। अब इन्होंने कहा हम जो अमल करते हैं ये 11 हदीसों से साबित कर, ये तो बाद में लिखी गई, ठीक है। अब यही अमल जो करते हैं हदीस और कुरान, और ये भी हनफी, हम भी हनफी, ये भी आलो सुन्नत, हम भी आलो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अमल ठीक अपने ठीक 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 अमल ठीक कुरान और हदीस से ठीक साबित ठीक है। कर दे। बस अच्छा मौलाना साहब मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ठीक है, फाउत हो गए ना, मेरी तरफ देखिए जी, मैं मसले को हल करना चाहता हूँ। तुम देवबंदी हो ना, देवबंदी हो ना, मैं देवबंदियों की किताबों से दिखाऊं जायज़ है, मानते हो? देवबंदियों की किताबों से दिखाता हूं, जायज़ है, मानते हो? मानते हो? देवबंदियों फतावा दारुल में देवबंद से मैं दिखाता हूं, फतावा दारुल में देवबंद। अच्छा ठीक, मेरी बात तो सुने, अपनी बारी पर बोले ना, मेरी आप बैठ जाएं यार, मेरी बात तो सुने, फिर आप जवाब दें, मेरी बात तो पूरे होने दें, बात होने दें, फिर आप जवाब दें। खैर आप जी आप अपनी बारी पर जवाब दें। बारी इनकी शुरू हुई, नहीं आपने बारी की, नहीं हुआ, उनके जवाब में मैंने बात की। बात यही हुई थी कि 11 हदीसें दिखाई मेरे भाई, और शर्तों में नहीं। आप बात सुने, बात सुने, एक मिनट बुजुर्ग, आप चुप हो जाएं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात हुई थी, लेकिन देखे ना, हम हदीस बुजुर्गों बात तो सुने, बात तो सुने। आप बैठे एक मिनट से, नहीं ये बात हुई थी, हम मानते हैं, आप एक मिनट बैठ, बात तो सुने। इमरान भाई की बात आप कर रहे हैं, इमरान भाई आप बैठ, आप बैठ, करें। आप बैठ। मसला ये है, हेलो, वो कहते हैं खिलाफ सुन्नत, वो किताबों से खिलाफ सुन्नत लिखा हुआ दिखाएं, हम ये दिखाते हैं कि जैसे। एक बात मेरी सुने, एक मिनट बात सुने, बात तशरीफ रखें, मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात नहीं तो बात मेरी सुनते हो कि नहीं यार? बात तो मैं हदीस पर नहीं, तू कहता हम जा रहे हैं, इस पर आंसर है, तू कह रहे हम जा रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, इस पर मुझे आंसर है कि हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया? एक मिनट आप बैठ, अच्छा देख, अब बात सुनो तसल्ली से, तसल्ली, बात है मेरी बात, अब तसल्ली से सुने, दरमियान में न बोलें। हम तसल्ली से सर बात सुन लें, जब बोले आप तसल्ली से अपने नंबर पर बोलें, बात सुन लें। एक मिनट चुप। मौलवी साहब का मुतालबा है कि आपने हदीस सुनाने, हालांकि अब मेरी बातों में तो न बोलो, आपकी मुरवजा बार बार हम सुन सके, मेरी बात तो तसल्ली से सुनो। बंदा मुनाजरे के लिए तो दूसरे की बात सुनने की हौसला तो रखें। मैं आपकी बात में एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूँ, आपकी पूरी बात सुनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ मुनाजरे में जाता हूँ कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करता हूँ, मैं उसके पूरी बात को सुनता हूँ, चाहे गाली मुझे कोई निकाले अपनी बारी पर जवाब देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप भी हौसला रखें, मेरी बात पूरी सुने। अगर मेरी कोई बात गलत है, आपकी बारी है, आप मुझे जवाब दें। बात यह है कि उसूल को देखें तो हमने शर्तों में लिखवाया था कि महल निज़ाम मुतय्यन होगा, और महल निज़ाम इनको बतावे दिया कि तुम कहते हो खिलाफ सुन्नत नाजायज है। पहले कहा 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद शरीफ, अब कहा 1 दफा भी हम नहीं मांगते। तो फिर वाजे कह दो कि 3 दफा कुल पढ़ के 3 दफा दरूद पढ़ के भी खिलाफ सुन्नत है, 3 दफा कुल 3 दफा दरूद न पढ़े, 1 दफा भी न पढ़े, दुआ मांगे वो भी खिलाफ सुन्नत है। मुतलकन इनकार करो ना, वाजे अपने मजहब को वाजे क्यों नहीं कर सकते? कैसा मजहब है कि जिसको बंदा मैदान में बयान ही न कर सके, सामने वाजी न कर सके, मुबहम लफ्जों पर स्टेज पर बैठ के कहें दे बिदत कबीहा, बिदत सय्या, किताबों में लिखा हुआ है, राय सुन्नत लेकर आए, इसमें बिदत सय्या लिखा हुआ है, बिदत कबीहा लिखा हुआ है, कतआन नाजायज लिखा हुआ है, कतई नाजायज होते जो दलील कती से साबित हो। किताबों में बिदत लिखते हो, नाजायज लिखते हो, कती नाजायज लिखते हो, और हराम मकरूह तारीमी हराम के करीब ले जाते हो। जब मैदान में आ जाते हो तो फिर कायदे लगा जाते हो। अभी खुद आपने कहा कि हम तो 1 दफा भी नहीं मांगते, तो उस 1 दफा को भी कहो कि नाजायज है। दूसरी बात,
मैं दुआ बदल जनाजा को कुरान मजीद के आयत से भी साबित कर सकता हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूँ। दुआ बदल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल ये है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा, दारुल देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत है, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते हैं मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा, या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बदल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और ना हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ हैं, हदीस के भी खिलाफ हैं। ठीक नहीं, टाइम वाले नहीं शुरू, महल नज़ा से पहले नहीं शुरू। वो अपनी तरफ जब वो बोलते हैं टाइम ज्यादा ले जाते हैं, अब 10 मरतबा उन्होंने कहा कि टाइम नहीं, टाइम अभी नहीं। क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, विद्यार्थी लोग क़यामत होती काली है, क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, बहुत से हदीस नहीं दिखा साढ़े उलमा देवबंद को रख तो बने नहीं, सारे उलमा दे फतवे बेफतवे हैं, तो साढ़े उलमा दे फतवे तू न दे, गलत कह रहे हैं, जेरी गाल तुम्हारे नाल गलत कह रहे हैं, एक मिनट हदीसा दिखावा हदीसा माफ कर देने हैं, एक हदीस, सिर्फ एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मिठे मदनी पाक पैगंबर दी वन जिथो मदीना आली, जिथा कौन मकान दा वाली, हे धरती है वो खाली, जिथा नूर रिसाल छक्के आप पहुंचम जीदे मक्के, ऊ सोने मक्के मदनी दी एक फरमान चा दिखा लो, सारे अखी दे नूर बन पोती, दिल दा सुरूर बन पोती, दिल सारा खुश थी पोती, और सारे मुसलमान जरा खुश थी पोतन जो सही दा फरमान आ गए। असा आइंदा वास्ते दुआ मंगसूं, साडा प्यो मंगे, साडा दादा मंगे, ओ सारी सारी जद मंगे, जले सही दा फरमान आवे सी, इख्तलाफ न रहे, सही दा फरमान आवे सी, न देवबंदी को जरूरत है, न बरेलवी को जरूरत है, न अहले हदीस को जरूरत है, जो सही दे फरमान को रद्द कर सके, जरा रद्द कर सी, वो इस्लाम कने रद्द थी, सही दा फरमान दिखाल मो से, अगर है तोरे कोलो हेरा फेरा छोड़, ठीक है, ठीक बात करें, तू तो कल दाई असा ढेर हेरा फेरा हेरे फेरा को रख, एक हदीस नबी सही दी जो नबी सही में फरमाया होवे, इमे करो, नबी सही कीता होवे,
کہ آپ نے جنازہ پڑھایا ہوئے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرا ہوئے جنازہ سامنے ہوئے نبی سے بیعت ہے ہومن ول اندے بعد صحابہ نے ملک کیتا ہوئے یہ مول صاحب جرا ہے نا ایک لیٹر باکس ہے سارے دن سے جرا پیدا سو جیسے تے ملک کیتا وہ بھاویں آپ نے کو کر دے لیٹر باکس جرا کرے یہ لیٹر باکس کو دکھا لو مولوی کے ہاتھ میں سب جو جے کو بخشے جے کو نہ بخشے بس سارے پڑھ کے جرا اپنے آپ بخش لے رہو اچھا اندے بعد ایک حدیث مولانا دکھا رہے ہیں کہ سارے گالی چھوڑیں مختصر کریں نبی سیدہ فرمان کتنا کتاباں آندھی بیٹھا نبی سیدہ ایک حدیث پڑھیں کہ قال قال رسول اللہ جلے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ فرمائے میں کرو اکا کھارے مسلمان جرے بیٹھے جرا نہ کرے تھی اسلام کا خارج سیدہ فرمان کون چھوڑ دے باقی میں جھیڑے گھتو جھیڑے گھتواؤ رگڑے کرو باوے یہ کرو تھوڑے شرائطی ہیں تھوڑے گالی ہیں یہ پیچھے وقت تاڑا لے ڈالی ساڑھے سیانے بیٹھے ہو تو پرا لے لوگ ہو کہنے میں تو سارے سیانے لوگ ہو دیہاتی لوگ میں بھی دیہاتی ہاں پرا لے لوگ ہو تو بائے کے پرا وچ مقدمے اور فیصلے کرنے دے تو فیصلہ کرو حدیث سناوے اسا سارے منن واسطے تیار ہیں اسا نبی سے دی حدیث سننا ہے جھگڑے کرانی سے نہ سارا جھگڑا کرنا ارادہ ہے نہ سا جھگڑا کرنا نبی دا فرمان سننے دے پن ٹھیک نہیں سنے دے پن تے پیچھے تو آپ سمجھ گنو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے نہ یہ شرطان ہے گالی نہ کش ہے سارے واسطے ایک نبی سے دا فرمان چاہتا ہے بس ٹائم آپ سنیں جی ہاں ٹھیک ہے آپ آگے کیا میں نے کہا کہ میں قرآن سے قرآن یہ ڈائریکٹ لگا ہوا ہے یہ صرف وہی بھرائی ہو رہی ہے یا ان کی بھی بھرائی ان کی بھی برائی کرو جب بولے ہو رہی ہے ان کی بھی ہو رہی ہے اس میں نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اچھا خیر کریں گے ٹھیک ہے کریں گے بے فکر ہو جائے کریں نہیں ہو رہی ان کی بھی کریں گے ان کی بھی کریں گے اچھی بات ہے نہیں کہ اس کو صرف شو کیا جائے گا نہیں ایک اچھا ایک منٹ میں جواب دے نہیں آپ بیٹھے ان کو کہو دونوں طرف سے ریکارڈ دو ایک منٹ میں صدر مناظر صاحب حاجی صاحب ایک منٹ شور کی بات نہیں ہے بھائی بات تو سنیں ہم مہمان ہیں نا کدھر سے آئے ہیں حاجی صاحب کدھر سے آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں آپ جدھر سے بھی آئے ہیں اس بندے کو ہم نہیں جانتے نام کا پتہ نہیں ہے یہ بندہ حاجی صاحب کے سپرد ہے جب آئے گا ویڈیو اس کے پاس ہوگی ہم اس کو کیا کرو گے بھائی یہ جو آپ کے پاس نہیں میں سمجھاتا ہوں یہ جو موبائل یہ کس لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کے بندے نہیں ایک منٹ یہ ڈائریکٹ جو ہے نا نہیں یہ آواز پہنچانے کے لیے تمہارا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا بھی صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں یہ آپ کے بندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو یہ صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں تشریف رکھ بالکل میری ہم توجہ نہیں تھی آپ نے توجہ دلائی بالکل جب یہ بولے ہم دیں گے ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا مناظرہ اللہ خیر کرے گا آپ کا ریکارڈنگ ہو رہا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ عقل سے کام لیں تشریف رکھ آپ دو بندے اور اٹھا لیں عزیزان گرامی سنیں میں نے کہا کہ میں قرآن سے جنازے کے بعد دعا جائز ہونے کا پابند دکھاؤں گا حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز حدیث ثابت دکھاؤں گا لیکن ایک تو مولوی صاحب اپنے شرطوں سے پھر گئے دستخط خود کیا تھا اس میں 11 حدیثوں کی کوئی قید نہیں تھی ان کا حق بنتا تھا اسی وقت اعتراض کرتے نہیں کیا آج ان کا کوئی حق نہیں تھا لیکن کر رہے ہیں چلو میں نے کہا کہ بات آگے چلے جائے اس شرط والی بات چھوڑی لیکن اب میں نے اس کے سامنے نئی بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں سمجھنے کی بات ہے وہ قرآن کو سمجھتے تھے حدیث کو سمجھتے تھے پوری زندگی انہوں نے یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث سے پڑھاتا رہا انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے اب اپنے علماء کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو اب آپ اپنے علماء کو مانتے ہو یا نہیں یا ان کو کہو کہ انہوں نے خلاف سنت کام کو جائز کہا خلاف سنت کام کو جائز کہا ان کے فتوے غلط ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کیوں نہیں لیکن میں نے آپ کو سامنے رکھا میں نے آپ کو کہا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے میری بات سنو کوئی نہ بولو بات کریں حوصلہ آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں
صدر صاحب اچھا ٹھیک ہے ٹائم لگا دیں صدر صاحب دیکھیں نا صدر صاحب آپ چپ ہو جائیں صدر صاحب صدر صاحب جی جی ان کو چپ کروائیں نا ذرا جی بات ہاں ٹائم شروع کرتے ہیں جی جی صدر یہ دارالعلوم دیوبند ہے، جیل نمبر 5 ہے، بعد نماز ادھر ایک سوال ہے. ہاں گرم نہیں ہوگا ایک منٹ حدیث ہمارے حوالے تلاش کرو یہ جاتے ہیں نہیں جائیں خیر نہیں جائیں جانے دیں نہیں ایک بھی نہیں پڑھنی کمزوری ہے صحیح ایسے بولے کیا تھی 11 حدیث ہیں سی لکھ پر چھوڑ تیجا ساری جگہ کیوں لکھ پڑھ 11 حدیث میں حدیث کے لکھے سو اچھا وہ 11 نہ دکھا لے وہ ایک دکھا لے کیوں نہیں لکھنا یار گال تتا نہیں تھی بڑا تتا نہیں تھی کیوں نہیں بیٹا تیری ساری یہ جو بندے نے گال دی جو بندے نے فتوی حسین مولانا وقاص صاحب وہ جوسی مولانا جی صاحب جی تم ٹائم چالو ہے ابھی ٹائم میں بتا دیں قرآن حدیث ثابت کر بس فیصلہ ہم خود کرنا جانتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے پہلے لکھ کے دے دیں کہ ہمارے دیوبند کے فتوے قرآن حدیث کے خلاف ہیں انہوں نے قرآن دیوبند سے دیا ہے کہ نہیں اصا آپ نے جو بندے منو نہ منو سب نبی دا فرمان دس نہیں ایویں نہ چل سے کام نہ منو تے منو آگ سو نہیں منے دے لکھ کے دے فتویٰ غلط ہے بندے نے کلمہ نہیں پڑھا نبی دا کلمہ پڑھا ہاں وقت آکھنا پوسی کوئی علماء ہیں جاہل نہیں ہے علماء او علماء ہلو بھائی جان ورطا گورا دیوا بیانو حالتا اس پر ایڈ پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی چالو کرو چالو ہے پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے یہ ان کی حالت دیکھو یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد قرآن حدیث سے شروع کریں اگر میری گال ہوئے غلط صبر کریں گزارش سنو چاہو گال یہ کہتا ہوں اچھا کشمیری کی سنا نہیں صدر مناظر کہتا ہوں یہ بات آپ نے صحیح سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ہیں جی چپ گال سنو گال سنو چپ کر کے گال سنو ایک منٹ گال سنو جی زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کی ایک ٹھنڈی دن گال سنو جی مناظرے دے اندر ایک گفتگو پیار محبت نال ہوندی ہے کاوڑ غصہ نہیں ہاں نہیں کرنا جوش نہیں یہ صرف مسئلہ سمجھنے دین دا بھی مسئلہ ایک بندہ کڑاوے بھی سمجھے بالکل اور ایک علاوے دوجا سمجھے دوجا علاوے او دی گال سنے اسا جھیڑا گات نو پچھو والا اٹھی والا بالکل میں جڑی گزارش کرنا چاہندا او اے ہے کیا اتھا تساں مسئلہ سمجھنا یہ مسئلہ حل تھی وے یہ چیز ہے نا ٹھیک ہے اور مسئلہ حل تھی وڑ دی سب تو بڑی صورت جڑی میرے نزدیک ہے اللہ کرے سی تساں میری تائید عرض کیتے اے حضرات ہنی دے تے اتفاق نہیں تھا پیا جیڑا کام اے حضرات کرن دے اے دکھا میں مولانا صاحب فرمائے میرے کنے قرآن کا آیت ہے حدیث ہے آخر ٹھیک ہے اور جیڑا کام اے کرن دے اگر انہیں دے ذمہ لے سوے اپ یہ چیز تے راضی ہوئے سارے اور حضرت کو گزارش کرے سا وقت بچاؤ اسا پہلے بھی دست بست عرض کرنے سارے استاد جی فوت ٹھیک ہے نا اسا انہیں دے بس
से भी वजह ठीक है मामले को खत्म करो हम दिखाते हैं, जय हजरात की मैया गुजारिश करेगा ठीक है, ये बात कहूँ, ये दिखाएं किताबों में लिखा है खिलाफ सुन्नत, लफ्ज दिखाएं। ठीक है ठीक है मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करे, दलील दे के खिलाफ सुन्नत नाजायज है। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह। तुमने दावा किया कि खिलाफ सुन्नत नाजायज है, बिस्मिल्लाह करो। ये मुद्दा ही तुसा इल्मी कापियां दे मौलवी साहब पढ़े लिखे वो मैं असा दिल्ली आलम हूं गाल सुनो मेरी असा हर गाल समझनु तेरी शक्लां दे के समझनु तुसा हदीस दे के दस दो बिल्कुल चट्टे ना मारो एक बेगो गाल सीधी है ये ओ को कूड़ा करो असा आप समझनु सारा जन्नत जन्नत दा रास्ता जान दो तुसा से को दसे दो सब बहुत जानो दूजी गाल है एक मिनट कर से गाल सुनो पहली गाल टाइम लाओ टाइम दे विच तुसा को हदीस दिखा लो ये हदीस विच लिखा खड़े वो ना मने मन्ने ना मन्ने नमाज असा पढ़ावनी है मन्ना असा अपने जनाजा पढ़दा पढ़दा माशाअल्लाह हाजी साहब सुनी गाल की चंगी गाल ठीक है बिल्कुल वो खिलाफ सुन्नत दिखावें हैं वो खिलाफ सुन्नत दिखावें किताबन हाजी साहब गाल खत्म हाजी साहब सुनी गाल की मैं बंद नहीं एक मिनट मेरी बात अब सुनो, मेरी एक बात सुनो। हाजी साहब करो सदर मुनाजिर चुप करो मैं थोड़ी गाल में इत्तेफाक करना बोलो हाजी साहब 2 मिनट बस इंशाल्लाह मौलाना साहब 1 मिनट सदर मुनाजिर साहब एक मिनट सदर मुनाजिर साहब आखे भी देवबंदी अपनी गाल दिखावें ते बरेलवी अपनी किताबां दिखावें ठीक है सही पूरी गाल आखो जी मैं जेड़ा अमल ओ करें ते मैं आधा मौलाना साहब आखे खिलाफ है सुन्नत तुसा सुने ना मैं गाल से तो कैसा ना जिथा गिरी गाल थी मैं आखे जेड़ा अमल ओ करें ते हां ओ दिखे से ओ गाल हुन गए सब तुसा गाल तो सुनो मैं जेड़ा अमल तुसा करें ते ओ दिखा लो हाजी सरकार तुसा के खिलाफ है सुन्नत है तुसा किताबां जो खिलाफ है सुन्नत भी असा के मंगना जायज है किताबां जो जायज लिखे हैं बस गाल खत्म है। असबा में कुरान को लिखा बा में हदीस को जायज लिखे हैं बस आप मुद्दा ही कुरान की आयत पढ़े पहले कुरान की आयत पढ़े अपने अमल के मुताबिक कुरान की आयत पढ़े ए टाइम देखो, अगर शर्तों की कोई पाबंदी नहीं है, तुम शर्तों के पाबंद नहीं हो कह तो गई बस, न तुम पाबंद ना हम पाबंद। तुम्हारा दावे खिलाफ सुन्नत है, बामे कुरान से साबित करो, बामे हदीस है, जी में साबित करो, तुम्हारी मर्जी। साडा दावा जायज है, असो साबित करे सो जी में साडी मर्जी। कोई ना तुसा पाबंद वे ना आसा या पाबंद ही वे बस जी में तुसा करें दो शुरू करो आप अपना अमल कुरान शुरू करें कुरान का ये देखो मुझे फता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फतावा फरीदिया जिल्द 1 मुझे दे दो। फतावा फरीदिया कोई पाबंदी नहीं, तुम आजाद हो हम भी आजाद हैं, तुम भी आजाद हो हम भी आजाद हैं। मौलाना ने कहा कुरान की आयतें हैं ये फतावा फरीदिया तुम जवाब ना तो बैठ जाओ। ये फतावा फरीदिया है, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है। फतावा फरीदिया जिल्द 1 सफा 333 नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, बिदत नहीं है। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज है, बिदत नहीं है। और ये जिल्द नंबर 3 में है, अगर कोई ये दावा करे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने और सलफ सालिहीन ने ये दुआ नहीं की है तो ये पैगंबर अलैहिस्सलाम पर इफ्तिरा है। मुफ्ती फरीद अगर कोई ये दावा करे कि हुजूर ने दुआ नहीं की, सहाबा ने नहीं की, ये बहतान है, इफ्तिरा है, किसी किताब में नहीं लिखा। ये फतावा फरीदिया और ये फतावा फरीदिया और फतावा दारुल में देवबंद जिल्द नंबर 5 जिल्द नंबर 6 बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा और 1 बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज से पढ़ना और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शरन दुरुस्त है या नहीं?
जिस तरह इसमें अलहम्द का भी जिक्र है, 3 दफा कुल का भी जिक्र है, इस तरह दुआ करना कैसे है? अल जवाब, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सफा 254, बाद नमाज जनाजा कबल दफन औलियाए मयत मुसल्लियों से कहते हैं कि आप लोग 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मयत को इसका सवाब बख्श दें। जवाब, इसाले सवाब में कोई हर्ज नहीं है। अनवारुल बारी। अब ये हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस सुने, हदीस सुने, हदीस सुने, ये अनवारुल बारी है। हदीस सुने, हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। टाइम नोट करे याकूब भाई, टाइम नोट कर, चुप्पी तक करो याकूब भाई टाइम नोट कर जाओ। हाजी साहब चुप करो, हदीस सुनो, इनको अभी रखो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, चुप थी वञो, हदीस सुनो, चुप थी वञो, चुप थी वञो, हदीस सुनो, हदीस सुनो। हाजी साहब, इस बच्चे को इधर से भेज दो। हदीस सुनो, हदीस मेरे तकरीर को क्यों खराब किया? इधर से निकाल, चला जाए यहाँ से। क्यों? ये मोबाइल वाला, हदीस सुनो, हदीस, चुप, हदीस। ये मेरे हाथ में अनवारुल बारी शरह सहीह बुखारी, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमामुल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, हदीस हजूर की है। और हदीस से साबित क्या हुआ? ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ? अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के। सवा मिनट वाले बाकी, सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ, खुद साहिब मिशकात ने लिखा है, सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी। और ये महीने के अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंदी अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहाँ जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारे सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरा थे शुरू वो खड़ा के इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, आप खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी, अभी इसलिए तो बात नहीं करते बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं, 1 मिनट समझ रहे? नहीं, मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करें। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है 1 मिनट। अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया। तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया हुआ मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक, नहीं, मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। टाइम हो गया, ठीक है, मौलाना साहब तकरीर करें।
حدیث کا جواب دے حدیث میں بلا یہ آخری جملہ چلو سنو بلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے. یہ بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے پہلے قدر اب مولوی صاحب کے بولنے کا کوئی حق نہیں, دستخط دے دے. حدیث میں نے دکھائی اور فتوی کا بولنے کی کوئی حق نہیں, دستخط دو نہیں, اب دستخط دینا. حدیث میں نے دکھائی دستخط دینا, کوئی بولنے کا حق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب جری حدیث پڑھیے میں ایک نے قرآن پہ ہاتھ رکھ دینا جنہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی سے کے سامنے جنازہ موجود ہے دلیل تو قرآن پہ ہاتھ نہ رکھو یار. دھوکہ نہ دے وہ لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ حضرت طلحہ موجود ہے اور نبی سے 4 تکبیراں پڑھ کر آئیں, پھر انہیں کتے دعا منگی ہے اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ نبی سے سامنے موجود ہے اور نبی سے دعا منگی ہے. جتنا دل رکھے میرے تو جرمانہ دے. اور حضرت طلحہ کی جری حدیث پڑھی سی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہوئے. ایک قبر اگو پڑھو 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 پر کھڑے ہوئے طلحہ سے اس سال عربی عبارت عربی عبارت عربی عبارت عربی 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 پڑھیے عربی پڑھو ان عربی پڑھیے عربی عبارت پڑھو عربی عبارت پڑھے نہ پڑھیے عربی عبارت پڑھیں عربی عبارت پڑھ کے سناوا جی پڑھو اے حضور دے اگر حضور تو عربی عبارت پڑھو میں اعتراض نہ کریں عربی عبارت پڑھو قبر دے اوتے کھڑ کے دعا منگا عربی عبارت پڑھو بزرگوں کو لکھا ہے پڑھو جو لکھا پہ وہ پڑھو جو لکھا پہ وہ پڑھو جو لکھا پہ ہاں یہ گال دے اوتے مناظرے کو ختم پہ کریں دے. کھڑو کھڑو یہ گال دے اوتے ختم پہ کریں دے کہ اگر جو حضرت طلحہ کی حدیث نبی سید سامنے حضرت طلحہ دا جنازہ ہوے چاہے یہ عنایت کو نہیں عنایت کو نہیں عربی سناؤ عربی سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اوتے کھڑے کر دی کریں عبارت پڑھو نا بزرگوں انہاں دی گال ہے حضور دی گال سناؤ نا عبارت پڑھو عبارت پڑھو نا تسا دے کھڑے دیوبند کی کتاب دیا عبارت پڑھو نا تسا پڑھو میں چپ کر رہے یار عبارت پڑھے نا میں چپ کر رہے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت تھی گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی قبر مبارک تے من کے جنازہ پڑھے اور قبر دے اوتے دعا منگی نے چیلنج میدائنا مولوی صاحب کو جو ثابت کریں جو حضرت طلحہ دا جنازہ حضور دے سامنے ہے اور حضور نے جنازہ پڑھے وال دعا منگی ہے. میں ادم اپنی شکست لکھ دے سا اگر مولوی صاحب لکھ لیں دیا کہ حضرت طلحہ جرنا انہاں دا جنازہ حضور دے سامنے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قبر دے اوتے نبی سے جنازہ پڑھے. انہاں دے کول کتاب جی پڑھی نے پوری بار حضور نے قبر دے یار تو چپ ٹھیک ہے دعا دا اختلاف ہے جنازے کے بعد ہمیشہ قبر دے اوتے جنازے دے بعد بخیر ہے ہاں شیشوا جنازہ پڑھے جنازے بعد دعا ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دستخط دے دو دستخط دے دو انور شاہ کی عبارت پڑھنے ان کے لکھا حدیث میں پڑھنا حاجی میں دینا نہیں عبارت پڑھے حاجی حاجی سے پڑھنا ایک منٹ حاجی صاحب منتشف کی کا ایک حدیث نکال دے حدیث نتاشی اللہ پاک بھائی نہ ملا سپینا کاغذ سے گاڑی سے ہاں کتاب دکھانے میں فتاوا عبید یا سفید کاغذ دے وچ عبید یا سفید کاغذ ہوتا چپ کرے تو سن سونا حدیث چپ کرے تو سن سو پڑھتے چپ کرے چپ کرو ایک منٹ دیکھو نا
सुधारना का तो एक मिनट अर्ज है देखो एक मिनट गाल का सुनो मज़ाहिर हक रहा ए यार चुप तो करो डन का तो एक मिनट ये है किताब गाल सुनो यके गौर ना सुनो किताब हदीस दी उनदा नाम है बुखारी शरीफ तुसा यका सुना हो ए बुखारी शरीफ दा यारी हदीसां हिन ना उनका माना ते तशरीह की है अनवर शाह कश्मीरी से यार चुप करो गाल तो मेरी सुन गई ना मेरी गाल तो चुप नहीं की मेरी गाल सुन से मैं जवाब दे सकता सदर मुनाज़र दलील है मैं भाई से गाल करना गाल करें मसला हाजी साहब समझ रहे हैं मुनाज़र खत्म नहीं के मुनाज़र आ गए खलील यार बस एक हाजी साहब मैं एक मुद्दा फिक्का दाल हदीस फतुल बारी काढो ना फतुल बारी हाँ फतुल बारी मेहरबानी गुनाह का शुक्रिया अदा करना गरबा होता है अब एक मिनट एंड नहीं चाह जमात एंड नहीं चाह एंड थीवड़ी नहीं तुसांगने आकर एक हदीस काली क़यामत तक में पेश कर सकते एक दिन में पेश कर दीजिए जिन्हें करे देखे हो लोगों को पिता से सत्य को खामोश करो ना सब्र करो आप चुप हो जाए एक हदीस तो मैं किताब भाई से पढ़ा आइए पढ़े चुप हदीस से यार सुन तो सही इवे सुना कि नबी जनाजा पढ़ाया नबी सुन से जनाजा सुन तो हाजी साहब मैं मौलवी साहब को किताब पढ़ना किताब ही पढ़े तर्जुमा ही करे हां किताब ही पढ़े तर्जुमा ही करे दोस्त मैं चुप करके बैठा ए हदीस ही पढ़े तो तर्जुमा ही करे चुप हदीस पढ़े तर्जुमा बिश्ती ज़ेवर दो बिश्ती ज़ेवर किताब मैं नहीं की हदीस पढ़े तर्जुमा करे हदीस पढ़े तर्जुमा करे हदीस पढ़े देखो सही वक़फ़ा अला कब्री अगू पढ़ पूरी हदीस पढ़े पूरी हदीस पढ़े पूरी हदीस अगू पढ़ यार अगू पढ़ पूरी हदीस पढ़े पूरी हदीस पढ़े मौलवी साहब ए लफ्ज़ पढ़े अगू देख पढ़े मज़ाहिर हक बोलो हाजी साहब चुप हाँ चुप हीन अस्बह फजा हत्ता वक़फ़ अला कब्रिही सुबह जले थई हुजूर हजरत तलहा की कब्र पे गए फसफन्नास यही ना माना कर यदे फिर हुजूर ने हाथ उठाया अल्लाहुम्मा तलहा अल्लाहुम्मा गलत हदीस गलत पढ़दा पे हदीस गलत पढ़दा पे कब्र दे उते दुआ मांगी हाजी साहब ये मौलवी साहब की किताब है मौलवी साहब की हदीस की किताब है मज़ाहिर हक तुम खामोश हो खामोश आपकी किताब ये किताब नहीं आप बैठ जाएं मुनाजरा खराब हो गया 8 मिनट ठीक था ये बोले हम भी बोले क्या कर रहे हो यार नहीं इमरान भाई 8 मिनट इनको बोलने दो हम ये किताब मौलाना साहब की मिल्कियत है उन्होंने दी है मौलाना साहब एक मिनट खामोश हो जाओ 1 मिनट खामोश यार ये मुनाजरा हाजी साहब हाजिर आपने जिम्मा उठाया था कि कोई नहीं बोलेगा मनी कड़े मनी कड़े अवाम मनी कड़े मौलाना साहब तशरीफ रखे बात ही खत्म है बस वो थक गए ये मौलाना साहब ने किताब दी है उन्हीं की मिल्कियत है उन्होंने कहा इसके अंदर हदीस मौजूद है कि जिसके अंदर हम साबित करेंगे कि जनाजे के बाद दुआ मांगेंगे मौलाना साहब ये अल्फाज दिखा दें कि मैयत सामने पड़ी थी
मैयत साहब ने पढ़ी थी, मौलाना साहब इसी अपनी किताब खामोश हो जाए। मौलाना साहब इसी अपनी किताब के अंदर जिसने ये लकीरें लगी हैं, ये सब एक मिनट, एक नहीं बात आप मैं ठोक रहा हूँ। क्यों ठोक रहे हैं? आप एक मिनट बोले यार, एक मिनट बात सुनिए, इतना शोर करे तो मैं खामोश बैठा तो एक बात मेरी नहीं सुनते। अभी बात सुनिए, एक मिनट बात सुन। मैयत सामने पड़ी थी, मैयत पे तुमने हजूर ने नमाज जनाजा पढ़ी। ए हाजी साहब, ए इन्हां दी किताब है उर्दू दी, आपकी किताब है। हाजी साहब हाजी रहीम बख्श अले मेरे को लो नहीं, आप खामोश हो। बहुत तो सही। कोई माने ना माने, ये किताब हाजी साहब मेरी बात सुन ले, एक आखिरी बात सुन ले। उनके सदर मुनाजिर ये किताब भी हमने ले ली, मैं सदर मुनाजिर, ठीक है। अब उनकी बात सुनी, मेरी बात सुन। ये किताब मौलाना ने खोली थी, इसी हदीस के अंदर मौलाना दिखा दे कि मैयत साहब ने पढ़ी थी, इसी किताब में। अब खामोश तो करो। ये किताब के विच मौलाना साहब दिखा दे मैयत सामने लाती आई, जेड़ा अमल असा करेंगे है, जेड़ा अमल असा करेंगे है दिखा दे। यार हाजी साहब ये कुछ हदीस दिखाई वो भी नहीं मानते, अपने साथियों के फतवे भी नहीं मानते, दारुल देवान के फतवे भी नहीं मानते। अब हमसे क्या मनवा सकते चुप करो चुप करो चुप करो। असां अपनी यकीन ते मुतमैन हूं। गाल है तुसा रोटी खाओ, रोटी दी गाल सा फैसला सुनो, सो दुआ जहां या हक है या ना हक है। ठीक रोटी खा के नो सा बाद किताबां बेड़वा बिना चलो अरबी दी ग्रामर के नहीं वाकिफ कोई वो फैसला सुने सी कौन सुभान अल्लाह। ये सुनाएगा ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है। 8 मिनट तुम को सुना 8 मिनट तूने कुछ दलाइल को गुडी तन हदीसा दिखाई है, चुपा क्या दिखाई? ठीक है कोई किताब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक सवाल मौलवी साहब को करे सा नहीं हिक का ये एक मौलवी साहब हिक का सवाल दी में कोई इजाजत दो, हिक सवाल दी में कोई इजाजत दो तो आधा घंटा बोलते रहो, एक बात मेरी सुनो, सिर्फ एक बात सुनो, एक बात सुनो। ए साईं हिक का गाल मेरी सुन गिनो, सारे सुनो, हिक का गाल सुनो, मैं चुप करो मेरे हिक का गाल तो सुनो, आधा घंटा बोलेंगे रहे हिक गाल मेरी सुनो, मेहरबानी कर। मैं हिक का गाल हिक का गाल तो मेरी सुनो, ठीक है। उन मेरी खाम हाजी साहब हिक का गाल तो मेरी उड़ करो, हिक का गाल हिक इन्हें को खामोश करो, हिक का सवाल है, हिक का गाल बाकी कोई ना ले। मैं हिक का सवाल मौलवी साहब चलो वो तो नहीं, मैं मसला नहीं सुनेगा, मैं पढ़ते जाए, ये मुज़ाहिर हक़ हदीस की किताब है, हदीस में लिखा हुआ है, ये किताब में आप हवाले की हदीस की पढ़ते जाए। मेरा हिक का गाल सुनो, बे खत्म है। तूने अच्छा तला गाल बात है सुन, तू मेहरबानी कर। नहीं मैं कोई बात ही नहीं, तुझे सुनो तुसी गलत हो, अच्छा दुआ मंजूर
नहीं मैं ही का सवाल करन ये आधा घंटा मैं खामोश बैठा रहा तू साले इधर नहीं मानते क्या करें? नहीं मैं जनाजे की बात नहीं मैं जनाजे की बात नहीं कर बिया गल दुआ दी गल तू सही कोई मिनट छोड़ एक तो छोड़ तो देख तू सही का मिक्स को में दी गल तो सुन गाल सुनो खत्म करेंगे गाल अरे बस पाँच शादी से पढ़ते ठीक है वो नहीं दिखा सकेगा नहीं नहीं बाद में पढ़ लेंगे सिर्फ आप हदीस से पढ़े उनकी बातों को छोड़ ये हदीस पढ़ते जाओ एक पढ़िए बाओ ही का गाल मेरी सुनाओ बाओ चीदानो पे दवा के वेका ना नदा कर हदीसें पढ़ते जाएंगे सदर के हाकिम पढ़े ये पर कोई समझ नहीं बुखारी पढ़े एक सुनो ही का गाल मेरी सुन गए ही का गाल नहीं जनाजे दी खत्म नहीं जनाजे दी खत्म जनाजे दी खत्म कर रहे हो वैसे नहीं कर रहे हो वैसे एक मिनट गाल सुनो जैसे हम वो मैंने फतवा दारुल देवबंद से दिखाया दारुल देवबंद तेरे असातिज़ा के मदरसे से दिखाया वो हदीस नहीं जानते थे बाकी खामोश हो जाओ वो हदीस नहीं जानते थे यार आप कैसे तुम्हारे वो हदीस नहीं सुनते आपके असातिज़ा को हदीस का इल्म नहीं था सारे खामोश हो खामोश आप एक मिनट तुम्हारे असातिज़ा को हदीस मैंने तुम्हें कहा बिल्कुल मैंने तुम्हें कहा कि है लेकिन मैंने तुम्हें कहा अपने असातिज़ा का हुक्म बताओ बच्चे खत्म ठीक का गल मैं ईद में सुन से ईदैन दे बाद दुआ मांग दो या नहीं सवाल करें ईद दे बाद दुआ मांग दो या नहीं ईद दे बाद दुआ मांग दो नमाज ईद दे बाद दुआ मांग दे यार आप खामोश हो जाए ये बात सोच चुप करें आप मुझे तंग तो ना करें ना आप सदर हैं आप तंग ना करें मुझे ऐसा सारा कुछ समझी दो छोड़ो कोई मसला नहीं मैं आदा इन भी किताब दी से ईद बाद हजूर दुआ नहीं मांगी साहबा नहीं मांगी बातें मांग देवे तो पर जनाजे बाद ही मांगो ना किताब है